Hello students, in this video we are going to cover up the chapter number 5 of your English course book, and it's a poem, A Musical Instrument. It's a poem written by Elizabeth Barrett Browning. She is the famous English poet of 19th century. She was born in 1806 and died in 1861. She is the wife of Robert Browning. So, coming to the poem, A Musical Instrument. A musical instrument brings beauty in the sound that is used to make music so beautiful, so evokes emotions like love and memories in human. So, what a musical instrument do? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली क्या करता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा एक म्यूजिक क्रिएट करता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, एंड इट इवोक्स इमोशंस इन यू. दैट इमोशंस कैन बी लव एंड द मेमोरीज दैट यू हैड सम टाइम बिफोर इन योर लाइफ. तो म्यूजिक जो होता है हमेशा अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में अच्छा ही होता है, एक अच्छे चीज़ की तरह हम देखते हैं उसको. कैन अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बी अ रीज़न फॉर एन डिस्ट्रक्शन? क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ के डिस्ट्रक्शन का रीज़न हो सकता है? Do beauty comes at a cost? If yes, who pays the cost for it? The innocent? So this is the question that we are going to answer in this poem. Okay, so this poem is actually answering or raising a scenario before us that make us think of, can this be possible that a musical instrument is a reason for an destruction? Okay, so we will be seeing this poem, keeping this point in our mind. Okay, so the story of God Pan and Syrinx, a Greek mythology. But before going to the poem, you should know a background to the poem, because this poem is not wholly a plain poem written on this situation. In fact, this poem is taken from a Greek mythology. The poem stands with the background of a Greek mythology, because Elizabeth Barrett Browning has read many Greek literatures, and she is so inspired with these Greek mythologies, and so she is using this Greek mythology to write this poem. Basically, the god Pan is the main character that we will see throughout the poem, and he is the main character of the poem. And this character is actually taken from a Greek mythology by Elizabeth Barrett Browning to write this poem. So, who is God Pan? The great god Pan is a mythological character in Greek. He is a half god, depicted as half goat, waist down, and half man. He is the god of the wild, shepherds and flocks. He is known for his destructive and cruel nature. Generally, हम God को किस तरीके से देखते हैं? भगवान जिसको हम बोलते हैं, किस तरीके से देखते हैं? भगवान जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारे लिए चीज़ों को बनाते हैं, नेचर को क्रिएट करते हैं. तो गॉड इज अ क्रिएटर बेसिकली. लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रेट गॉड पैन है, ये एक क्रिएटर नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टर है. एंड दिस इज वाई मेनी गॉड डिस्पाइज दिस पर्सन, द गॉड ग्रेट गॉड पैन. ही इज नॉट एक्चुअली अ प्योर गॉड, ही इज हाफ गॉड. ठीक है, तो जिसमें इसमें आधा भगवान का अंश है और आधा एक राक्षस की तरह है ये. ठीक है, इफ यू वांट टू सी देन दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट गॉड मैन. सो यू कैन सी द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे क्या है, वो एक गोट की तरह दिखता है, एक बकरे की तरह, और कमर के ऊपर वो एक इंसान की तरह है, और वी शुड से ही इज लाइक हाफ मैन हाफ गोट. एंड ही इज वेरी क्रूअल इन नेचर, एंड ही इज वेरी प्राउड इन नेचर. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राउड है और क्रूएल तरह का एक ऐसा गॉड है ये, जो कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है, इसको क्रूएल है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो इस तरह का ये जो इसका कैरेक्टर है कुछ इस तरीके का है ये. एंड द सेकेंड कैरेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज सिरिंक्स. सिरिंक्स इज अ वुड निम्फ. निम्फ मतलब होता है एक तरह की परी बोल सकते हो आप. ठीक है, फॉर सिंपलेस्ट वे आई शुड से इट्स अ काइंड ऑफ परी जिसको हम बोलते हैं. तो सिरिंक्स इज अ वुड निम्फ. ओके, so once what happened, the god Pan proposed this nymph, that is Syrinx, for love, which she refused, and in order to save herself from him, she hid herself by becoming a reed in the river from the help of her sisters. मतलब अपने कुछ बहनों की हेल्प से वो एक रीड बन जाती है. रीड क्या होता है? दिस इज रीड, what you are seeing in the picture.
सो वो एक रीड बन जाती है और रीड बनकर वो अपने आप को छिपा लेती है। सी इज द डिस्गाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अपने आप को एक छिपे हुए फॉर्म में, ताकि ये जो गॉड पैन है वो उसको ढूंढ ना पाए, इसलिए वो एक रीड बनकर एक रिवर में छिप जाती है अपनी बहनों की मदद से। देन व्हाट हैपेंस, दिस गॉड पैन, बेसिकली मैंने बताया बहुत ही क्रूएल और प्राउड नेचर का है, ठीक है। इसे ये बात ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगी कि कोई उसको मना कर दे, उसने कुछ मांगा और उससे कोई मना कर दे। सो वो क्या करता है, इस सिरिंग्स को ढूंढने चले जाता है और वो को पता चल जाता है कि ये जो है किसी रीड के फॉर्म में एक रिवर में छिपी हुई है, और वो रिवर के पास पहुंच जाता है। एंड देन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सर्चिंग फॉर हर इन द रिवर, ठीक है। देन सर्च्ड फॉर हर इन द रिवर एंड फाउंड एंड मेड अ फ्लूट और पाइप, a musical instrument of that reed in order to keep syrinx forever with him in the form of a beautiful music। तो ये जो गॉड पैन है ये क्या करता है, उस जो रीड जिसमें सिरिंक्स है, जिसमें सिरिंक्स बनी हुई है और सिरिंक्स छिपी हुई है जिस रीड के अंदर, उस रीड को ये तोड़ता है और उस रीड को निकाल कर उससे एक पाइप बनाता है, और बोलना चाहिए एक फ्लूट बनाता है, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो इस सिरिंक्स को हमेशा अपने पास रख सके और उससे जो म्यूजिक बजेगा वो हमेशा उसको सुनेगा और उससे एक ब्यूटी जनरेट होगा, ठीक है। तो गॉड पैन जो है वो क्या करता है कि इस सिरिंक्स को हमेशा अपने पास में रखने के लिए, ठीक है, क्या करता है, वो उस रीड का एक फ्लूट बनाता है और अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस गॉड पैन इज, ठीक है। ये गॉड पैन इतना घमंडी है, इतना ज़्यादा क्रूएल है कि ये अपनी जिद पूरी करने के लिए इस तरीके से उस रीड को तोड़कर उसका एक फ्लूट बनाकर अपने पास रख लेता है। एंड दिस म्यूजिक इज सो ब्यूटिफुल दैट इवन गॉड इज मेस्मराइज्ड विद दिस म्यूजिक, ठीक है। भगवान जो हैं वो भी इस म्यूजिक को सुनकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन ये म्यूजिक आया किससे है, एक सेक्रीफाइस से आया है, एंड दैट इज द सिरिंक्स। जिस रीड में सिरिंक्स छुपी हुई थी उस रीड से ये बना है, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ही डिस्टर्ब द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द नेचर क्रूअली, और इस प्रोसेस में वो क्या कर देता है, वो एनवायरनमेंट को, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को पूरी तरह से ये खराब कर देता है, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिस्टर्ब कर देता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक नदी के आसपास। वी विल सी इन द पोएम, इट विल बी डिस्क्राइब्ड इन अ डिटेल्ड फॉर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड गो टू द पोएम नाउ। सो दिस इज अवर पोएम, A Musical Instrument by Elizabeth Barrett Browning. These are the lines. What was he doing, the great God man, down in the reeds by the river, spreading ruin and scattering ban, splashing and paddling the hoof of a goat, and breaking the golden lilies afloat with the dragonfly on the river. So, what was he doing? मतलब वो क्या कर रहा था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे ही का मतलब क्या है, पैन, द ग्रेट गॉड पैन। देखो यहाँ पे आफ्टर द कॉमा इट इज डिस्क्राइब्ड दैट हु दिस ही इज द ग्रेट गॉड पैन। तो व्हाट वाज दिस ग्रेट गॉड पैन डूइंग देयर डाउन इन द रीड्स ऑफ बाय द रिवर, ठीक है। वो रीड्स, जो नदी में जो रीड्स हैं उसके किनारे खड़े होकर वो क्या कर रहा था, ही वॉज स्प्रेडिंग रूइंस एंड स्कैटरिंग बैन। तो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज स्प्रेडिंग एंड स्कैटरिंग एवरीथिंग देयर। वो हर चीज़ को वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा था, वो हर चीज़ को फैला रहा था, हर चीज़ को क्या कर रहा था, वहाँ पे कुछ वो खोज रहा था बेसिकली। अगर इफ़ यू आर स्प्रेडिंग एंड स्कैटरिंग एनीथिंग दैट मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ खोज रहा था। क्या खोज रहा था, ऑब्वियसली ही वॉज फाइंडिंग दैट रीड in which the syrinx is hiding. Okay, the splashing and paddling the hoof of a goat, and breaking the golden lilies afloat with the dragonfly on the river. What he is doing, he is splashing and paddling with the hoof of a goat. जैसे कि मैंने बताया था, as I have said that this man, the pan, is half goat, half man. So what is hoof? This is hoof. हूफ मतलब जो पैर के जो नीचे का हिस्सा होता है एक जानवर का, उसको हूफ कहा जाता है, खूर बोलते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो दिस इज द हूफ ऑफ द गोट, मतलब वो अपने हूफ से वो क्या कर रहा था, वो हर चीज़ को वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा था। वहाँ पे वो पानी के ऊपर वो अपनी स्प्लैश कर रहा था, मतलब पानी के ऊपर अपने हूफ को मार रहा था। पैडलिंग कर रहा था, मतलब वहाँ पे वो अपने पैर को हिला रहा था बेसिकली।
और इस वजह से क्या हो रहा था, वहां पे जितने भी गोल्डन लिलीज हैं वो टूट कर नदी में बह रहे थे। अफ्लोट मीन्स होता है बहना, एंड गोल्डन लिलीज, जितनी भी वहां पे गोल्डन लिलीज, जैसे कि मैंने बताया था कि वो वहां पे बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है अपने सिर्फ एक जिद को पूरा करने के लिए, ठीक है, एंड दैट इज ही वांटेड द रीड, ठीक है। तो अब क्या करता है वो, उसको पता भी नहीं है कि वो आसपास में कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब कर रहा है सिर्फ अपनी जिद पूरा करने के लिए। उसने क्या कर दिया, इस गोल्डन लिलीज को भी तोड़ दिया और वो पानी में बहने लगे। वहां पे कुछ ड्रैगन फ्लाइज भी हैं जो बैठे हुए। ड्रैगन फ्लाई, इफ यू वांट टू सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई, ऑफ विद द ड्रैगन फ्लाई ऑन द रिवर। तो ड्रैगन फ्लाई भी वहां पे कुछ बैठे हुए थे, उड़ रहे थे, है ना। फूलों के ऊपर जनरली ड्रैगन फ्लाई जो है वो उड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं फूलों के ऊपर। तो ड्रैगन फ्लाई भी वहां से इस वजह से उड़कर चले गए, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, he tore out a reed and the great god man from the deep cool bed of the river. The limpid water turbidly ran, and the broken lilies a dying lay, and a dragonfly had fled away, or he brought it out of the river. Okay, तो he tore out a reed. उसने क्या किया, इसने एक रीड को तोड़कर बाहर निकाला, एक रीड को, the great god man, ठीक है। हर जगह, हर स्टैंजा में आप देखोगे कि यहाँ पे द ग्रेट गॉड पैन लिखना पोएट ने नहीं भूला है। दिस इज यूज्ड एज अ आयरनी हियर, यहाँ पे एक आयरनी की तरह यूज किया गया है। पोएट पूरे पोएम में इस पैन को अच्छा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन टू सी हैज रिटन व्हाट, द ग्रेट गॉड पैन। उन्होंने द ग्रेट वर्ड यूज किया है इस पैन के लिए, ठीक है। मतलब ये एक आयरनी है, इट इज नॉट actually, he is not actually great, ठीक है। the poet has used this great word as a irony for this character, ठीक है। ये आयरनी है। आयरनी मतलब हम जो बोलते हैं उसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब जस्ट उसका विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे जब पोएम में हर जगह, हर स्टैंजा में पोएट यहाँ पे द ग्रेट गॉड पैन पर्पसली लिखे हुए हैं, बिकॉज सी इज यूजिंग दिस वर्ड एज अ आयरनी फॉर दिस कैरेक्टर। ओके, तो ही टोर आउट अ रीड, उसने रीड को तोड़ा, द ग्रेट गॉड पैन, फ्रॉम द डीप कूल बेड ऑफ द रिवर, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो शैलो वाटर है वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, इट्स नॉट दैट डीप, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर ही है, तो वहां से उसने एक जो रीड है उसको तोड़ा। द लिम्पिड वाटर टर्बिडली रैन, लिम्पिड मीन्स क्लियर, ओके, एंड टर्बिडली, टर्बिडली मीन्स मडी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी इन द वाटर, what happened, the clear water in the river is now running turbidly, मतलब अब वो मिट्टी हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो जो मिट्टी नदी के नीचे दबी रहती है वो मिट्टी ऊपर आएगी, पानी जो है वो पूरा मटमैला हो चुका है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर अबाउट टू टेल। एंड देन द ब्रोकन लिलीज अ डाइंग ले, वहाँ पे जो ब्रोकन लिलीज थी जो टूट गई हैं, वहाँ पे अब मरी हुई पड़ी हुई है, मतलब वो सूख चुकी है। एंड अ ड्रैगन फ्लाई हैड फ्लैड अवे, मतलब ड्रैगन फ्लाई जो है वहां से भाग चुके हैं, ठीक है। और मीन्स होता है, और मीन्स बिफोर, ओके, और मीन्स बिफोर ही ब्रॉट इट आउट ऑफ द रिवर, मतलब जब वो रीड को तोड़ा और रीड को बाहर लेकर आया, उससे पहले उसने ये सारी चीजें की, ठीक है। एक तो उसने लिलीज को तोड़ दिया जो कि वहां पे अब मरी पड़ी हुई है, ड्रैगन फ्लाइज जो कि अब उड़ चुके हैं, और जो वहां पे साफ पानी बह रहा था अब वो मटमैला हो चुका है, उसमें मिट्टी आ चुकी है, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज दैट पैन हैज डन इन द रिवर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द सेकेंड स्टैंजा इज। देन थर्ड स्टैंजा, हाई ऑन द शोर सेट द ग्रेट गॉड पैन while turbidly flowed the river, and hacked and hew as a great god can, with his hard bleak steel at the patient reed, till there was not a sign of a leaf indeed, to prove it fresh from the river. Okay, so now what she is saying here? She is saying that high on the shore sat the great god Pan. यहाँ पे सेट, व्हाट इज द वर्ड
सेट मीन्स, सेट का मतलब होता है, सेट इज बेसिकली अ ओल्ड इंग्लिश फॉर सिट और एसोसिएट सैट, ठीक है, सैट का एक ओल्ड इंग्लिश है यहाँ पे। तो ही इज सिटिंग व्हाट एट द शोर, मतलब नदी के किनारे वो बैठा हुआ है, वाइल टर्बिडली फ्लोट द रिवर, और रिवर जो है वहां पे टर्बिडली मतलब बहुत ही तेजी से, मटमैला रिवर है, मिट्टी के साथ बह रहा है। एंड हैग्ड एंड ह्यूड अ ग्रेट गॉड कैन, ग्रेट गॉड कैन मतलब एक जो भगवान है, जो बहुत ताकतवर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से उसने भी पूरी रिवर को, पूरे वहाँ पे जो रीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं, सबको उसने डिस्टर्ब कर दिया है। वैसे हैग्ड एंड ह्यू का मतलब होता है कट करना, बहुत ही रफली कट करना, ठीक है, बहुत ही रफली कट करना, टू कट रफली, ठीक है, टू कट रफली। तो उसने बहुत ही रफली, मतलब कि बहुत ही, जैसे होते हैं ना क्रूएल लोग जो होते हैं, वो बहुत ही रफली कोई भी काम करते हैं, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को काट भी रहे हो तो आप जेंटली काट सकते हो, नहीं, ही इज कटिंग इट रफली, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया हैग्ड एंड ह्यूड। विथ हिज हार्ड ब्लीक स्टील एट द पेशेंट रीड टिल देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लीफ इंडीड। इसका मतलब यह है कि उसने क्या किया है, उसने अपने हाथ में एक स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक ब्लेड की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। उससे वो क्या करता है, उस रीड को, पेशेंट रीड कहा गया है यहाँ पे, मतलब रीड जो पेशेंट है, मतलब जो क्या है यहाँ पे, ही इज द विक्टिम हियर, जिसको यहाँ पे विक्टिम क्रिएट किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो रीड है जो कि उसके हाथ में है, उसको वो उस ब्लेड से काटता है, और जब तक उसके ऊपर एक भी लीफ ना रह गई हो, एक भी लीफ का कोई साइन भी ना रह गया हो उसके ऊपर, टू प्रूव इट फ्रॉम द फ्रेश फ्रॉम द रिवर, ताकि वो उसे रिवर से बिल्कुल अलग दिखाए। मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है, टू प्रूव इट फ्रेश फ्रॉम द रिवर का मतलब यहाँ पे ये है, इट इज नॉट लुकिंग एज इट वॉज लुकिंग इन द रिवर, वो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा जैसा वो पहले रिवर में दिख रहा था, ठीक है। वो अब उसमें वो फ्रेशनेस नहीं रह गई है, अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। यहाँ पे फ्रेश का मतलब फ्रेश नहीं है, यहाँ पे फ्रेश का मतलब है अलग दिखना, ठीक है। तो इट इज नॉट लुकिंग एनी सेम ऑफ दैट व्हाट इट वाज इन द रिवर, ठीक है। बिफोर दिस बॉय द ग्रेट गॉड पैन केम इन द रिवर एंड कट दैट रीड, ओके, फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जब उसने उस रीड को तोड़ दिया। नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा, ही कट इट शॉर्ट डिड द ग्रेट गॉड पैन। अब उसने क्या किया, उस रीड को छोटा कर दिया काट के। Then here it's an exclamatory sentence, you can see the poet is saying basically how tall it stood in the river. Poet is sad, वो बोल रही हैं कि कितना, मतलब वो कितना लंबा था जब वो पेड़ में था। और now this man, this great god Pan had cut that reed short. अब उसने उस रीड को छोटा कर दिया है काट के। Then drew the pith like the heart of a man. उसका पिथ का मतलब क्या होता है, द इंटरनल पार्ट ऑफ द रीड। रीड जो होता है वो एक अगर जो स्टिक है, उस स्टिक के जो बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको वो निकाल रहा है, मतलब उसके बीच में वो एक होल बना रहा है, ठीक है। तो उसके बीच का जो हिस्सा है उसको वो निकाल रहा है। तो ही इज ड्रू द पिथ, मतलब वो क्या कर रहा है, वो पिथ को बाहर निकाल रहा है। लाइक जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ अ मैन, जैसे आप एक इंसान के अंदर से उसका हार्ट निकाल लो, उसका दिल निकाल लो, ठीक उसी तरह ये उस स्टिक के अंदर से उसका पिथ निकाल रहा है, ठीक है। पिथ का मतलब होता है इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टिक। स्टेडली फ्रॉम द आउटसाइड रिंग, और फिर वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है, मतलब बाहर वाले हिस्से से उसको खींचकर उसमें छेदा कर रहा है, उसमें एक होल बना रहा है वो। एंड नॉच द पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग इन होल एज ही सेट बाय द रिवर। जब वो रिवर के बगल में बैठ कर क्या कर दिया, उसके अंदर एक पूरा का पूरा होल बना दिया, उसके अंदर वो जितने भी उसके अंदर जो अंदर में जो उसका जो इंटरनल पार्ट था उसको वो पूरी तरह से खाली कर चुका है। नाउ द फिफ्थ स्टैंजा, दिस इज द वेज लाफ्ड द ग्रेट गॉड पैन। देन व्हाट ही इज डूइंग, अब वो अपने अचीवमेंट पे खुश हो रहा है, हंस रहा है वहां पे बैठ के रिवर के किनारे। लाफ्ड व्हाइल ही सेट बाय द रिवर, जब वो नदी के किनारे बैठा हुआ है वो बहुत हंस रहा है, बहुत खुश हो रहा है। बेसिकली वो उसने जो अचीवमेंट पा लिया है, उस अचीवमेंट के लिए वो बहुत खुश हो रहा है।
एंड देन द ओनली वे सिंस गॉड्स बिगेन, ठीक है, टू मेक अ स्वीट म्यूजिक, और उसके बाद फिर वो वहां पे बैठकर जो म्यूजिक है वो बजाना शुरू करता है, दे कुड सक्सीड, ठीक है। देन ड्रॉपिंग हिज माउथ टू अ होल इन द रीड ही ब्लू इन पावर बाय द रिवर। हियर दिस पावर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why it is important? Because the poet has used power instead of air. जब आप अपने मुंह से किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब अंदर हवा डालते हो, जब आप उसके अंदर फूंकते हो, तब म्यूजिक निकलता है, that's it. But here the poet has not used the word air, instead she has used power, ठीक है। Why she has used power? She has used power because she wants to say that this man is so cruel and so proud of himself that he is forcing himself on that reed. अपने आप को वो फोर्स कर रहा है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे इस फोर्स को बताने के लिए, दिखाने के लिए पोएट ने पावर वर्ड यूज किया है, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड हियर दैट पोएट हैज यूज्ड, ओके। सो उसने क्या किया, उस वहां पे नदी के किनारे बैठकर वो म्यूजिक को बजाने लगता है, ठीक है। वो बहुत खुश है, वो बहुत हंस रहा है नदी के किनारे बैठकर, बिकॉज वो अपने अचीवमेंट पे बहुत खुश है। और नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दैट ही हैज मेड, ठीक है। एंड देन ही ड्रॉप्ड हिज माउथ इनटू द होल ऑफ द रीड के उस होल के अंदर उसने अपना माउथ लगाया, अपना माउथ डाला, एंड देन व्हाट ही डिड, ही पुश्ड ब्लू द एयर इन द रिवर, बट पोएट हैज यूज्ड पावर इन बाय द रिवर। तो ही ब्लू द power by that whole of the instrument while he was sitting at the river. So this is the, and he's making the music out of that instrument, okay. So now in the 6th stanza, sweet 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 O Pan, piercing sweet by the river, blinding sweet O great god Pan, the sun on the hill forgot to die, and the lilies revived and the dragonfly came back to dream on the river. Now this stanza is all about the music that this great god Pan is making through that instrument that he has just made out of that reed. अब उस reed से जो उसने म्यूजिक, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उस इंस्ट्रूमेंट से जो वो म्यूजिक निकाल रहा है, उस म्यूजिक का तारीफ किया गया है इस स्टैंजा में। Sweet 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 O Pan. Here poet is saying that how sweet this music is that you are making through this instrument. It is even piercing the river, मतलब रिवर के भी आगे इसका म्यूजिक जा रहा है, पियर्स कर रहा है, दूर तक लोग इसकी म्यूजिक को सुन सकते हैं, और इतना स्वीट है ये म्यूजिक, ठीक है। इवन दिस म्यूजिक इज ब्लाइंडिंग अस, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, जो भी इसका म्यूजिक सुन रहा है वो क्या हो जा रहा है, ब्लाइंड हो जा रहा है। ब्लाइंड हो जा रहा है मतलब कि उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वो इस म्यूजिक को सुन रहा है। इतना ज़्यादा ये म्यूजिक स्वीट है, इसकी म्यूजिक इतना ज़्यादा इस म्यूजिक में स्वीटनेस है कि जो भी इस म्यूजिक को सुन रहा है वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ब्लाइंडिंग स्वीट ओ ग्रेट गॉड पैन, here also poet has used the word oh great god Pan. Again here irony is used, you should not forget that irony is used here. The sun on the hill forgot to die. Here what the poet is saying, the sun on the hill forgot to die, that means the sun which is going to set in the evening, अब इवनिंग में इवनिंग का समय है, शाम का समय है, अब उसको डूबना है, बट वो डूबना भूल गया है। सन जो है वो भी इस म्यूजिक में इतना खो गया है, उसको पता नहीं है कि अब उसे डूबना है। यहाँ पे डाई का मतलब डाई नहीं है, यहाँ पर डाई का मतलब है टू सेट, ठीक है। सन जो है जब इवनिंग के समय सेट हो जाता है, बट दिस सन हैज फॉरगॉट टू सेट, ठीक है, इन द वेस्ट इन द इवनिंग। अब वेस्ट का समय, वेस्ट में जब इसको सेट करना था तब ये सेट नहीं हो रहा है, मतलब वो टाइम को भी रोक दिया है इस म्यूजिक ने। इतना ज़्यादा ये म्यूजिक स्वीट है और अच्छा है कि नेचर भी रुक कर उस म्यूजिक को सुन रही है, ये है इसका मतलब। एंड द लिलीज रिवाइव्ड एंड द ड्रैगन फ्लाई, मतलब जो लिलीज वहाँ पे जो गिर गई थी पानी में, जो उनकी डेथ हो चुकी थी, जो सूख गए थे, वो लिलीज भी रिवाइव कर चुकी हैं। वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो भी वापस आ चुके हैं इस म्यूजिक को सुनकर और रिवर के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। दे सीम लाइक दैट दे आर ड्रीमिंग ऑन द रिवर। जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, ऐसा लगता है देख के कि वो भी ड्रैगन फ्लाइज भी जो है रिवर के आसपास घूमकर इस म्यूजिक को सुन रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा, बट दिस स्टैंजा इज बेसिकली अ आयरनी, this you have to remember. Then
Yet half a beast is the great god Pan. Then in the last stanza, poet is saying that this great god Pan, इतने अच्छे म्यूजिक बनाने के बाद भी, the poet has used the word yet. Yet means इसके बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी, इतने अच्छे म्यूजिक बनाने के बावजूद भी, this great god Pan is half beast. मतलब एक राक्षस की तरह है वो. In the great god Pan, to laugh as he sits by the river. क्योंकि वो अभी भी रिवर पे के किनारे बैठकर हंस रहा है, वो अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर खुश हो रहा है, ठीक है, कि उसने कितना बड़ा काम किया. मेकिंग अ पोएट आउट ऑफ अ मैन. द ट्रू गॉड साइज फॉर द कॉस्ट एंड पेन. ठीक है, तो क्यों यहाँ पे पोएट, यहाँ पे भगवान जो है ऊपर से द ट्रू गॉड हियर वर्ड इज यूज्ड ट्रू गॉड. ट्रू गॉड का मतलब है जो एक्चुअल गॉड है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है. अभी तक जो ग्रेट गॉड पैन थे वो नहीं, जो ग्रेट ट्रू गॉड हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. वो जो है वो ऊपर से देख रहे हैं इस ग्रेट गॉड पैन को, और उसकी इस एक्शन को देखकर भगवान भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक पोएट है जो एक इंसान से निकला है, ठीक है, मतलब एक इंसान यहाँ पे एक क्रिएटिव काम कर रहा है, बट वो क्रिएटिव काम किस कॉस्ट पे आ रहा है, किस पेन पे आ रहा है, ये देखकर भगवान भी सोच रहे हैं. ही इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इट. ठीक है, फॉर द रीड विच ग्रोज नेवर मोर अगेन एज अ रीड विद द रीड्स इन द रिवर. एंड ही इज द ट्रू गॉड इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ दैट रीड. वो अब इस रीड के बारे में सोच रहे हैं जो अब इसके बाद इस रिवर पे फिर से नहीं उगेगा, ठीक है, जो अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है. तो दिस इज द कंप्लीट थिंग अबाउट दिस पोएम that you should know. And this poem is not that of a very typical poem, but this poem is having a different idea than the other poems that I think. And then, so this is the way that you should know about this poem. If you are going to see about the rhyming pattern of this poem, this rhyming pattern of the poem is A, B, A, C, C, then B. This is the rhyming pattern of the poem in the whole, all the stanzas. This is the rhyming pattern, and it's same in all the stanzas. Now we should go through the conclusion of this poem. The poem shows how cruelty cannot be justified, even if it is led, if it leads to the creation of something beautiful. मतलब अगर कोई चीज़ आप, कोई अच्छा काम भी अगर आप कर रहे हो, कोई ब्यूटीफुल चीज़ आप बना भी रहे हो, तो भी जो आपकी क्रुएलिटी है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. इट कैनॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग, क्रुएलिटी होती है, ठीक है, आप किसी का नुकसान पहुंचाकर किसी अच्छी चीज को नहीं कर सकते. द पोएम इज एन इंटरेस्टिंग पैरेलल विथ रियलिटी एज ह्यूमन हैव सिंस टाइम डिस्ट्रॉयड एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर फॉर देयर ओन सेल्फ डिजायर्स. इस पोएम के थ्रू आप एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो देख सकते हो, ठीक है, जो हम ह्यूमंस में ऐसा देखा जाता है जनरली. दैट इज दैट हम ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए हम हमेशा नेचर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. हम हमेशा नेचर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया भी इस पोएम से निकल कर आता है. आर्ट हैज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, बट देन अगेन इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल. तो आर्ट का भी दो एस्पेक्ट्स इस पोएम में दिखने को मिलता है. एक आर्ट मतलब कला का भी दो एस्पेक्ट देखने को मिलता है इस पोएम के थ्रू. ठीक है, दैट इज इफ इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आर्ट एक ब्यूटीफुल है, तो साथ ही साथ आर्ट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, आर्ट डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. तो दिस आइडिया, दिस थ्री आइडियाज दैट दिस पोएम गिव्स, and this is the conclusion of the poem. ठीक है, now additional points. This poem is also analyzed in a feministic point of view. ये जो पोएम है इसको फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है. कई सारे एनालिस्ट हैं वो इस पोएम को फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, because Elizabeth Barrett Browning is trying to criticize the condition of women in the Victorian English society by referring a Greek mythological events where a man, Pan, tried to force himself on a woman when she denies to surrender and hides herself in disguise as a reed in a river. The reed was destroyed from its original self to a musical instrument to be kept in his possession against the woman's will. He doesn't even care if is she alive or anymore.
ठीक है। तो इस पैन के थ्रू, पैन एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और ये जो स्टोरी है ये ग्रीक माइथोलॉजी का स्टोरी है, ठीक है। सो इस कहानी और इस कैरेक्टर के थ्रू पोएट जो हैं वो इस आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं विक्टोरियन इंग्लिश सोसाइटी को, ठीक है। जहाँ पे पोएट बोलती हैं कि जो विमेन का कंडीशन है सोसाइटी में वो कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे मेन जो है वो खुद को विमेन के ऊपर फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया है जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को यहाँ पे एनालाइज किया गया है कई जगह पे। Here, Browning has focused upon the nature of then patriarchal society, where the sweetness of the music voiced the exploitation of the women. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने बेसिकली एक बेसिक नेचर को ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब जो पुरुषवाद सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी को यहाँ पे पोएट जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, ठीक है, जहाँ पे विमेंस को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये पोएम एक उस चीज़ को भी, उस आइडिया को भी डेवलप करता है, बिकॉज जिस तरीके से पैन ने उस सीरिंग्स को पाने के लिए, ठीक है, उसने उस जिस रीड में वो छिपी हुई थी उस रीड को भी तोड़कर वो क्या करता है, उस रीड को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमेशा अपने पास रख लेता है ताकि वो उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सके, ठीक है। एंड दिस इज द आइडिया दैट ऑल्सो गेट्स डेवलप्ड इन दिस थ्रू दिस पोएम. In this way, we have completed the poem, and I think you all have understood what Elizabeth Barrett Browning is trying to say through this poem. And if you have any doubt, you can give me the comment in the comment section, or you can ask me the question in the WhatsApp. Okay? And then in this way, we'll be signing off. Goodbye.